Hi everyone, this is Samit from Talks on Ground. Welcome to another podcast. Today we have a very special guest, Anshul Saxena from Noida. Welcome Anshul to the program. Uh, so today we are going to deep dive into various topics and understand from Anshul a bit about what he does. Hmm. तो अंशुल का मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ पहले. So uh, Anshul is a uh, health coach today. He had vast experience in the IT industry, and then he shifted his focus. So he runs a running group in Noida. He's done many marathons, and he also has a very interesting immersive program for weight loss. So I will have Anshul explain his background a little more. Yeah, first of So all, thank you, Samit. Thank you very much for inviting me to this podcast. I am privileged being invited here, and thank you from the bottom of my heart. So, about myself, my name is Anshu Saxena, and I am a health coach. I am on a mission to help 100,000 people improve their health, start their journey of weight loss, and achieve their weight loss goals. About a little bit about my introduction. I have around 17 years of IT industry experience. Besides being into IT, I was working last as a quality assurance lead. I was leading a team of 10 to 12 quality analysts in my team. Since last 7 to 8 years, I have also been a regular runner, a fitness enthusiast. I have run various half marathons, few full marathons, and because I live in Noida, so there is a smog problem which starts from the month of October till January. So I used to feel some suffocation here in doing running outside in right, outside my home. So I took a decision. I started running on hills. Delhi NCR is very nearby to Himachal Pradesh and Uttarakhand. I started running hill marathons over there. So I started competing in 21 kilometers, 30 kilometers in Solang Valley, Manali, and various other locations, Jibhi, Nainital. So I wow. became a hill runner. So तो besides that, पहले आप huh, yeah, go on. yeah, yeah, please go ahead. So मेरा एक क्वेश्चन था अंशुल कि as you mentioned you were a IT professional for 17 years and all that. So during that time or when you were growing up, were you still interested in you know health? Were you healthy? Were you doing workout? Were you walking? Were you running? Mhm. And if not, then why not? And how did it start? Yeah, so there's a story behind that. When I completed 10 years of working in IT industry, I was suffering from various lifestyle diseases. You name it, and I had that disease in my blood Okay, test reports. The situation was that bad. I was because of my irregular working hours, eating habits, no exercise. I used to suffer from high blood pressure, high cholesterol. My thyroid level was also high. I had pre-sugar also. So my blood test parameters used to have that bold marks and all the ranges going in the higher range. When my son right, was born in 2017, I thought I should now be better serious. Otherwise, when he grows up, maybe 5 years old or 10 years old, I will not be able to play with full enthusiasm and energy with my son, with my growing son. So that hit me, that strike me in my mind, and it helped me in taking a serious decision. I was living in New Delhi. I started walking, going to regular morning walks there. Then I started brisk walking. Then soon I started running. Initially, it was very difficult to run even 1 kilometers, but gradually I picked up the pace. I started running 5 kilometers, then 10 kilometers. Then eventually I was participating in 10 kilometers run and then half marathons. So this is how my fitness and health journey started. And I am also a founder. Since then, I have participated in I mean, 30 to 40 half marathons and few full marathons as well. And besides that, I have been a hill marathon also. I also founded one Noida's one of the biggest running group, that is Noida Extension Running Group. Right now we have close to 300 runners. We used to participate in multiple half marathons and full marathons in Delhi NCR, and we also go to hills to participate in running events. So
when I completed around 15 to 16 years in IT industry, I thought, man, and also at that point of time, my home loan was over. So it is said that unless and until you have a liability of home loan or car loan, you cannot take a risk. You have to work in the same Right. environment, whether it is good or not. So I also used to do the same thing. When it was over, I thought, why not take a risk and make my passion, that is health and fitness, into profession. Then I took this decision. Then I became a health coach. I became a certified health coach, and since then I have helped hundreds of people improve their health, changes in their lifestyles, diet patterns, and exercise pattern, to make them improve their health and achieve their weight loss. So you mentioned certified health coach. So you got some certification from some place. Yeah, so there is a company called My Health Buddy in Gurgaon. I did a Okay. 3 month certification from there. So what does that do? I mean, you're taught various things about exercise and food habits and so on. Yeah, there are different guest lectures who used to come on alternate days. There used to be online sessions. They used to teach us about lifestyle patterns, what is diabetes, what is thyroid, how we can prevent them to increase, how we can make or prepare a diet plan, what goes under a diet plan preparation, how we can suggest clients exercises based on their weight, height, age factor, and a lot many other things. Okay. तो आप ये बताइए कि like you mentioned initially you couldn't even run one kilometer or something. Uh, Honestly, I don't think I can run 1 kilometer at a decent pace. So, just to put this in perspective, so you are what, in your mid 40s or something? Yeah, I'm 44 years of age. Okay. So, and you started when you were like 37, 38, something like that. Yes, 7 to 8 years before. Okay. So before that, in your childhood, like, were you active in sports? Were you inclined towards outdoor activities? Did you have any health issues? Can you share that with us? No, in childhood, I was not very much active in outdoor activities, but yes, I used to play cricket, I used to play badminton, I used to do cycling. Okay. Yeah. So, in terms of health, how do you define health? I mean, you are a health coach. So, in your mind, आपके हिसाब से health क्या होता है? Health, I would say, is something with which you cannot lose your energy levels, with which you are able to perform your day-to-day activities without getting tired or exhausted or without any feeling of laziness. You can uh, have you can achieve your daily task without uh, getting exhausted or suffering from any disease. You might be free from any lifestyle diseases, and it develops with some good habits of eating or exercising, or your stress level should be less, lifestyle changes should be there. So because of all of these constitute to a good health in any person life. Okay. So, when you coach people who are, maybe older than you, or who are much younger than you, do you see any difference in their approach, in their ability to change? Uh, मेरा डायरेक्शन ऑफ माय क्वेश्चन इज कि कोचिंग इजी हो जाता है ओल्डर के साथ या यंगर के साथ? आई मीन, हैव यू सीन एनी डिफरेंस? Yeah, so actually, it does not depends on the age factor. It also depends upon the mindset of people. कि जो यंगर जनरेशन है उनका माइंडसेट क्या है, जो ओल्डर जनरेशन वाले लोग हैं उनका माइंडसेट क्या है, एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू चेंज देमसेल्व्स इन केस दे आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, they have bad eating habits, they are not into any exercising. How frequent they can change themselves from this pattern when they start my weight loss program, how quickly they are able to get out of their comfort zone and start developing a healthy eating habit or maybe exercising habits. जो दोनों लोगों में डिफरेंस आता है वो एक्सरसाइज इंटेंसिटी का आता है,
कि younger generation, I can suggest them an exhaustive training plan of gym or cardio exercises, but this I used to avoid in case of older generation, जहाँ पे उनकी bones भी थोड़ी weak हो गई होती है, पता चला घुटनों में दर्द हो रहा है, तो I cannot suggest them to go to gym and do lift some heavy weights, so that difference is there. Okay. So मैं अपना बताता हूँ. I mean, since you are a health coach, I should use that opportunity to get some insights. So about 3 years back, I started doing some walking. Hmm. I mean, I love walking, but COVID lockdown tha, and for a year I was not like doing any exercise. I put on weight and all that. So I just started walking 10,000 steps a Hmm. day. And I have been able to continue that, you know, that 10,000 steps up to almost 3 years. But the challenge is I'm not able to add anything to it. And I'm not able to do gym, a lot of gym work for various other reasons. So, how do you think, or what do you think is the impact? I mean, अब ऐसा हो गया है कि supposing at 8:30 p.m. or 10:30 p.m. I realize, अरे, I am only on 6,000 steps, so I have to like complete it. कभी तो ये भी हुआ है कि रात में 11 बजे सोने के टाइम मैंने देखा, अरे, I am 2,000 down, so I went to the terrace Hmm. and walked. So, Hmm. but the problem is I am able to maintain that 10,000, but I can't go beyond it. मतलब for various reasons. And so I'm able to maintain something, but I'm not able to do more with it. So you might So, also be near 40 or beyond 40. What is your age? so I'm much older than you. So Okay, 50s. about to reach there. Okay. So So I'm 49. one thing I 49. So one thing I would like to tell you and the people who might be watching this when this podcast is released, then when we grow in age, मान लीजिए हमारी 40 से ज्यादा की एज होती है, तो we tend to lose our muscle mass. मसल मास Okay. लूज होने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी की जो मसल मास लूज होता है, उससे हम जो डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, या कुछ हमें किसी बच्चे को उठाना है, या किसी बाल्टी है जो कि जिसका वजन 10 किलो है उसको उठाना है, तो हमारी बॉडी थक जाती है, हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती है. इसका रीजन ये होता है कि हमारा इंडियंस का प्रोटीन इंटेक बहुत कम होता है. सपोज अगर Right. किसी का आपका आपका वेट 70 kgs है, तो आपको 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑन अ डेली बेसिस कंजम्पशन होना चाहिए. ये इंडियन डाइट्स में पॉसिबल नहीं होता. ले दे के वो थोड़ी अरहर की दाल हो गई, छोले राजमा वगैरह हो गया, वो भी डेली बेसिस पे कंजम्पशन नहीं होता है, जिसकी वजह से Right. जब एज ग्रो होती है, एजिंग होती है, तो मसल मास लॉस होने लगती है. तो वॉकिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइजेस. डूइंग 10,000 स्टेप्स पर डे इज वेरी गुड फॉर योर कार्डियो वेस्कुलर हेल्थ, फॉर योर हार्ट हेल्थ. बट अगर कोई वेट लॉस के लिए जाना चाह रहा है, या अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहा है, या और भी हेल्दी रहना चाह रहा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड टू सोनली डिपेंड ऑन वॉकिंग. दे शुड गो टू जिम, और अगर जिम नहीं जा सकते तो थोड़ा सा डंबल्स वगैरह लाके घर पे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि मसल उनकी इंटैक्ट रहे. So that is my recommendation, being a health coach, to not lose their muscle and maybe do some variety of exercises. अगर आप किसी लाइफस्टाइल डिजीजेस से हो गया है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, योगा इज द बेस्ट मॉडरेट एक्सरसाइजेज. आप हफ्ते में 4-5 सेशन योगा कर सकते हैं पार्क में जाके, या ऑनलाइन कर सकते हैं, तो जिससे आपका जो लाइफस्टाइल डिजीजेज है उनका पैरामीटर्स काफी डाउन हो जाता So can I ask you another question on that? So I noticed मैं योगा कर रहा था 1 साल पहले तक. For various reasons I stopped it. तो उसमें मैंने देखा कि when I do yoga, because of the scheduling, I had to do it in the morning, like है. around 10 o'clock, 10:30 to 11:30, something like that. तो उस टाइम पे क्या होता था, at after 11:30 I was so relaxed. You can almost say that I didn't want to work. Like I was not in that. So I जो मॉर्निंग में एक एंथुजियाज्म होता है या फिर एनर्जी लेवल हाई होता है, एक स्ट्रेस होता है, एक नर्वस एनर्जी होता है, बट द योगा ब्रॉट दैट नर्वस एनर्जी डाउन. एंड हम्म. व्हाट इट
meant was I was very relaxed. So I don't know if it's a problem, but I saw it as a like a weird thing. I was unable to do it at 7. I know many people do it at 7. Evening में there is a different kind of an impact. So do you think the timing of these sessions and what we have eaten before, उनका इफेक्ट अलग होता है? जैसे जिम जाओ तो you feel more, in my personal opinion, more energized, while if you do yoga, you feel more relaxed. So how do Hmm. you Yoga is more combine? Yoga is more related to your stress, sleep patterns, anxiety, depression. अगर अगर आपको किसी को वो उन सब चीजों से सफर कर रहा है तो आई वुड रिकमेंड योगा, बिकॉज योगा में बहुत डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं। अनुलोम विलोम हो गया, प्राणायाम हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, इनहेल एक्सरसाइज पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो भी लोग स्ट्रेस से पीड़ित हैं या बहुत लाइफस्टाइल उनकी हेक्टिक है या स्लीप पैटर्न्स में कोई दिक्कत है तो उन लोगों को योगा के लिए जाना चाहिए। और या फिर अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस से इम्पैक्टेड है। हाँ, यूथ के लिए अगर उनको ज्यादा एनर्जेटिक फील करना है, कई बार होता है कि अच्छा भी दिखना है मस्कुलर बॉडी होती है तो लोग अच्छे दिखते हैं, जो जो यंग जनरेशन वाले लोग होते हैं, इसलिए वो जिम प्रेफर करते हैं। आप किसी को योगा करते हुए, मतलब आजकल अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उनका परसेंटेज बहुत कम है जो यंग जनरेशन वाले योगा करते हैं। तो दोनों की ऑडियंस अलग है, दोनों का बेनिफिट्स अलग हैं। और जैसे कि आपने कहा मॉर्निंग और इवनिंग में, मैं रिकमेंड करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग अगर एक्सरसाइज होती है दैट इज बेस्ट। एनवायरनमेंट शांत रहता है, ट्रैफिक पॉल्यूशन नहीं रहता है, अगर आप पार्क में करते हैं, कहीं बाहर जाके करते हैं, गाड़ियों का शोर शराबा नहीं रहता, तो मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज। शाम तक होते होते हमारी बॉडी थक जाती है, 8-10 घंटे काम कर लिया, घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, तो वो थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, फिर मजा नहीं आता है मतलब शाम को करने। So I know you run a 3-month health, sorry, weight loss program. हम्म। तो I think that's your flagship offering. तो आप इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को? मे बी समवन might be inspired to, follow some of the leads or maybe just join your program. Okay. So I have a 3 months exhaustive program for those people who are specifically looking for weight loss. It can be 5 kgs, 8 kgs, 10 kgs, or 15 kgs. I help them to start their health and fitness journey and achieve their weight loss goals. The name of my 3 months course is Health Foundation Blueprint Weight Loss Program. अब मैं इसके बता रहा हूँ कि इसमें मैं ऑफर क्या क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई प्रोवाइड 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल, जिसमें क्लाइंट की क्या करंट हेल्थ स्टेटस है, उनका बॉडी वेट क्या है, एज क्या है, और फूड प्रेफरेंसेस क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, और इन सब चीजों के बारे में मैं एक पूरा प्रॉपर फॉर्म है वो हम लोग फिल अप करवाते हैं, जिससे कि मुझे एनालाइज करने में आसानी हो कि क्लाइंट की करंट हेल्थ स्टेटस क्या है, कोई लाइफस्टाइल डिजीज तो नहीं है। इसके बेसिस पे मैं फिर उनका डाइट प्लान बनाता हूँ। डाइट प्लान बनाने के बाद वो कस्टमाइज डाइट प्लान होता है। एक 30 साल के इंसान का डाइट प्लान अलग होगा, एक 50 साल के इंसान का अलग होगा, और 60 साल के इंसान का अलग होगा, बेस्ड ऑन देयर फूड प्रेफरेंसेस, देयर एज, उनका वेट लॉस का गोल क्या है। प्रोटीन की क्वांटिटी अलग होगी, कार्बोहाइड्रेट्स अलग होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और फाइबर्स को मिला के इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि खाने में प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो पहली चीज तो होगी, मैं 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल करता हूँ, जिसके बेसिस पे कस्टमाइज डाइट प्लान प्रोवाइड करता हूँ। थर्ड ऑफरिंग इज, मैं क्लाइंट की जो बॉडी नीड्स होती हैं या उनके जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके बेसिस पे मैं उनको एक्सरसाइज प्लान सजेस्ट करता हूँ, तो जिसको वो घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम में जाके वो एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये हो गई। उसके बाद हम लोग वीकली फॉलोअप्स कॉल करते हैं। हर हफ्ते एक फॉलोअप कॉल होती है क्लाइंट के साथ, जिसमें ये डिस्कस होता है अगर कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे, तो कोई चेंजेस वगैरह मुझे सजेस्ट करने होते हैं, तो मैं उनको वो चेंजेस सजेस्ट कर देता हूँ। तो ये 4-5 ऑफरिंग्स हैं, और कैलोरी ट्रैकिंग का सपोर्ट भी रहता है। मैं बताता हूँ कि कौन सी ऐप आप यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप जो डेली बेसिस पे कैलोरी इनटेक कर रहे हो उसको मेजर कैसे कर सकते हो। तो ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, और 3 मंथ्स में मैं कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट का जो भी वेट लॉस गोल है उसको अचीव कर सके हम लोग। तो ये 3 month क्यों है? व्हाई नॉट, डू यू थिंक 3 month इज द राइट नंबर जिसमें कि वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाते हैं, हैबिट बन जाती है?
हाँ, हैबिट के लिए तो ये बोला जाता है कि 21 दिन अगर हम कोई काम लगातार करते हैं तो हैबिट डेवलप हो जाती है। कोई भी राइट। वेट लॉस के लिए अगर रिजल्ट किसी को चाहिए है तो एटलीस्ट वन वन शुड गिव एटलीस्ट दैट इज मिनिमम ड्यूरेशन। 3 महीने, 3 महीने की मिनिमम ड्यूरेशन होती है जिसमें हमको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ओके। तो आपके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, मतलब हाउ डू इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज वर्किंग फॉर for people in this program, and where do you think they get challenged? कई बार जैसे लोगों को खाने का पैटर्न बहुत सालों से खराब होता है और एक्सरसाइज करने का रूटीन नहीं होता सालों से, तो शुरू में जो पहला हफ्ता होता है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। Sure. क्योंकि उसमें लोगों की आदत नहीं होती एकदम से डाइट प्लान फॉलो करने के लिए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो पहला हफ्ता होता है उनमें वो सारी चीजें उनको ना छुड़वाऊं जो कि वो इतने सालों से खा रहे हैं। तो फर्स्ट वीक और 1.5 वीक थोड़ी थोड़ी चीजें वही रहती हैं जो कि वो होते हैं, और बाकी मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज करता हूँ डाइट प्लान में, एक्सरसाइज प्लान में। और इनिशियली स्टार्टिंग में मॉडरेट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी की बिल्कुल भी आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, देन वी ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये चैलेंजेस आते हैं शुरू में, और बीच में एक आध महीने बाद ऐसा होता है कि बॉडी हमारी डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान के यूज टू हो जाती है। उस स्टेट को बोलते हैं प्लेटू। प्लेटू इज अ कंडीशन वेयर वेट लॉस होता ही नहीं है। तो उस केस में एक हेल्थ कोच डिसाइड करता है कि कैलोरी इनटेक बढ़ाई जाए या कम करी जाए, तो कैलोरी का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, डाइट प्लान में क्या चेंजेस करने हैं जिससे कि वेट लॉस फिर से रीस्टार्ट हो सके। तो वो एक और चैलेंज आता है बीच Right. I can completely imagine that, changing, जैसे मेरे को, I don't like sweets, but I do like my chaat में। and my, you know, anything salty, तो हम्म oily. तो उसको निकालना is not easy. Uh, Otherwise, in terms of health, how do you think, आजकल जो हम, we take so much of time on TV and laptop, and right now we're using digital हम्म devices. Do you think there are exercises and things one can do even when working? और do you, मतलब कि जैसे एक तो हमने प्रोग्राम कर लिया, 1 घंटे का सुबह योगा कर लिया, फूड पे कंट्रोल कर लिया, बट आर देयर थिंग्स वी कैन डू थ्रू द डे so that we are healthier? And like you mentioned, plateau. So I'm on a plateau. So clearly, I'm not gaining, but then I'm not also losing weight, even though I'm not हम्म overweight as such. So, what do you think about that? सो कैन यू जस्ट रिपीट योर क्वेश्चन? मैं ये कह रहा छोटे से था बात। कि हम थ्रू द डे वी डू मेनी एक्टिविटीज एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ हम्म टाइम ऑन लैपटॉप एंड टीवी एंड सो ऑन। तो हमने हम्म सुबह तो हमने कर लिया योगा, एंड देन मे बी वी कंट्रोल द डाइट, but there must be things we can do through the day, हम्म so that impacts our health. मतलब कि supposing I did yoga in the morning, and I control my diet, but I'm sleeping 3 hours in the afternoon. So हम्म surely that's not going to help. तो जैसे अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं, वो आजकल थोड़ा सा एक वर्किंग मीटिंग्स का भी चलन चल गया है कुछ कंपनीज में कि आप वॉक करते हुए मीटिंग्स करें, या अगर आपने लंच किया है ऑफिस में अपने कैफेटेरिया में, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, 1 घंटे का लंच ड्यूरेशन होता है, खाने के बाद आप 1 घंटा आधा घंटा वॉक कर लो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ या तो बात कर लो, मैनेजर की बुराई कर लो या ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में, वट एवर इट इज, वट एवर इंटरटेन्स यू, जिससे टाइम का पता नहीं Right. चलेगा। तो वो वॉकिंग ब्रेक्स आप ले लो। कई बार आजकल फिटनेस सेशंस भी ऑर्गेनाइज होने लगे हैं कॉर्पोरेट्स में कि फिटनेस जैसे प्लैंक चैलेंज हो गया, प्लैंक आप कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, स्क्वाट्स वगैरह कितना कर सकते हो, योगा सेशंस वगैरह भी आजकल इंक्लूड हो गए हैं। हाइड्रेशन पे आप लोग ध्यान दो, मतलब हाइड्रेशन पे ध्यान दे सकते हैं, बीच बीच में पानी पीते रहो। मिड मील अगर क्रेविंग्स होते हैं तो आप नट्स वगैरह या सीड्स वगैरह आजकल आ गए हैं, फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स, वो वो ले लो Right. आप। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा लो, जिसकी वजह से ये सब आप बीच बीच में भी एक्टिविटीज करके हेल्दी रह सकते हो। Right. And there is a lot of, like, if I go to a medical shop today, I see lot of, जैसे आपने flax seeds कहा, अभी तो chia seeds, flax seeds, pumpkin seeds,
देयर इज so many over the counter medication मिलते हैं for sleep, for this, for that. Do you think we should use any of these? हाँ, मतलब वी शुड नॉट एक्सीड द क्वांटिटी, बट यस दे आर रिच इन प्रोटीन्स। और बाकी हम अगर जंक फूड की बात करें तो उससे तो कहीं कई गुना ज्यादा बेटर होते हैं ये वाले चीज, तो वी कैन यूजुअली टेक देम, या इनको पानी में भिगो के भी ले सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी कंज्यूम कर सकते Okay. So, now that we've covered more of the program aspects, I want to go back to the running because I'm very fascinated with the running aspect, wherein you're going 1 kilometer, then 2 kilometer, and it's so difficult to do it. तो आपने ये कैसे करा? मतलब when you're running a kilometer, maybe you're taking 10 minutes, 12 minutes, I don't know, 5 minutes. हैं। तो उस टाइम पे बहुत थॉट्स आ रहे होते हैं, स्पेशली इवन व्हेन आई एम वॉकिंग, आई कैन रिलेट एटलीस्ट दैट वे कि नहीं हो पाएगा। आई मीन हाफ द चैटर इन द माइंड इज कि ये नहीं हो पाएगा, एंड इफ यू गिव अप एक्सीड करने का मन योरसेल्फ, करता है। हाँ, तो हर समय यही मतलब द होल थॉट प्रोसेस इज टू गिव अप। So as हम्म। a runner, how was your journey mentally and physically both? शुरू में बहुत दिक्कत होती है। जब शुरू में आप स्टार्ट करते हो रनिंग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो लगता है कि यार क्यों कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास एक वाई होता है ना, कि वाई यू आर डूइंग दिस फॉर योर मे बी ग्रोइंग चिल्ड्रन, यू आर ग्रोइंग इट फॉर टू बिकम हेल्दी, यू आर गोइंग डूइंग इट फॉर योर फैमिली, तो वो वाई आपको आगे लेके जाता है। हाँ, एग्जॉस्टिंग होता है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि आप धूप निकल गर्मियों में अगर दौड़ रहे हो तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इस चीज के लिए। अगर नहीं हो तो रनिंग आपको मेंटली स्ट्रांग बना देती है। रनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर आप स्ट्रेस्ड में हो, 5 किलोमीटर आप दौड़ लिए हो, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है, तो माइंड में जितना भी स्ट्रेस है वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं रनिंग करने के बाद, आपको खुशी मिलती है, खुश होते हो आप। तो इन सब चीजों के लिए फिर इंसान करता है, एक पैशन बन जाता है उसका, कि इससे करके मुझे खुशी मिलेगी, जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग से वो खुशी प्राप्त नहीं होती है लोगों को। Right. तो अभी आपका क्या है रनिंग? 5 kilometer, and I think you've done half and full marathons also. यस यस, 21 किलोमीटर्स की भी की है मैंने, करीब 30-40। फुल मैराथन्स मैंने हालांकि कम की है, 5-6 की हैं। लेकिन 2018 से अभी तक मैं हिल मैराथन्स में बहुत पार्टिसिपेट किया है। हर साल मेरी आदत है 4 बार मैं हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा हिमाचल प्रदेश कवर चुका हूँ। सोलांग वैली में हेल रेस होती है एक, जो वन ऑफ द Wow. इंडियाज टफेस्ट ट्रेल रेस होती है, जिसमें कैजुअलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत बहुत टफ रूट होता है। खाई वाई रहती है बीच में, जंगली जानवरों का डर रहता है, जंगल में आपको दौड़ना होता है। तो उसकी वजह से आप एक बहुत अच्छे मेंटली स्ट्रांग इंसान बन जाते हो, और उन सब चीजों की वजह से मैं कभी जिंदगी में, जो मेरे साथ अगर खराब चीजें होती है, मैं कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैं 7-7 8-8 घंटे में जंगलों में रहा हूँ, वहां अकेले दौड़ रहा हूँ। हालांकि और भी रनर्स होते हैं, लेकिन वो 2-2 3-3 4-4 किलोमीटर आगे पीछे रहते हैं, डर रहता है कि रात होने से पहले हमको खत्म करनी है। पहाड़ रहते हैं, खाई रहती है, पत्थर रहते हैं, कई बार चोटें भी लगी हैं। तो जब उस एनवायरनमेंट में इंसान अकेले सरवाइव कर लेता है, तो ये जो हमारी लाइफ जो होती है, उसकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके सामने कुछ नहीं लगती। जब वहां से जिंदा निकल के आ गए, तो ये तो कुछ भी नहीं होती। So this is amazing. I mean, I'm getting goosebumps even listening to that because it's so exciting to do treks and all that, which I've done a little bit, but surely running is a very strenuous thing. Especially एक बारी आप, हम्म। you could have run a kilometer yesterday, but today you could be tired at 500 meter mark. और कोई भी रीजन हो सकता है उसका, मे बी यू डिडंट स्लीप वेल और रिकवरी नहीं हुई, व्हाटएवर, इन माय लिटिल एक्सपीरियंस। तो हम्म। उस मोमेंट पे फिर आप आगे कैसे जाते हो जब फिजिकली यू आर नॉट लाइक you're फीलिंग कि हाँ आप थोड़े टाइट हो या फिर पेन हो रहा है कहीं पे? व्हाट डू यू थिंक व्हेन दिस इज हैपनिंग? I think of the pleasures or the benefits that I will be getting after completing that 5 किलोमीटर रन और 10 किलोमीटर रन। जो मुझे खुशी मिलेगी ना, तो वो मुझे प्रेरित करती है वो उस चीज को दोबारा करने के लिए। अगर मैं नहीं भी सो के उठूं,
या मतलब मेरा कोई अपने किसी फ्रेंड को बोल दूं यार मेरे को सुबह उठा देना, अलार्म नहीं बजेगा या मैं स्नूज कर दूंगा। तो एक ये भी रहता है कि अच्छा मोटिवेशन रहता है कि वो फ्रेंड है, उसने उसको मैंने बोला हुआ है उठाने के लिए, अगर वो उसके साथ नहीं जाऊंगा दौड़ने तो हो सकता है उसको बुरा लगे या वो मुझे कुछ सुना दे। तो इसलिए एक वो भी राइट। मोटिवेशन फैक्टर रहता है। तो श्योर। इसलिए सोशल ग्रुप बहुत जरूरी है इसमें रनिंग में, तो उससे आपको ओके। मोटिवेटेड रहते हो। जिस दिन मन नहीं होता तो यार दूसरा कोई बोलता है तो तब चल लेते हो। Right, right, right. So what I have picked up in this is one thing you mentioned is the purpose. Ki why you are doing it is very important. Passion is हम्म। important, and then focusing on the end goal, the end result. जो आपको उससे pleasure मिलेगा कि आपने complete कर लिया. Uh, हम्म। so right now, are you looking forward to some goal? Like, do you have like a target कि मेरे को ये करना है? अभी ऐसा तो कुछ टारगेट नहीं है। हाँ, मैंने क्योंकि रनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया पिछले 7-8 सालों में, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा मैंने इग्नोर किया है। तो मेरा टारगेट यही है कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम करूं, बिकॉज आई एम इन मिड 40s। कल को आई विल बी 50 और 60s भी क्रॉस करूंगा, तो स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए मुझे जिम जाना ज्यादा जरूरी है। आई हैव बीन आउटडोर पर्सन, मुझे थोड़ा सा इंडोर से प्रॉब्लम होती थी, बट जैसे Mhm. जैसे आप एज में ग्रो करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। तो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन माई स्ट्रेंथ बिल्डिंग रादर देन जस्ट रनिंग। Okay. So any final thoughts, something I might not have covered, which you think is very important for the audience to know in terms of being healthy and to be fit? And if somebody has not started but they're thinking, how should they approach this? Any thoughts? एक मैं अपना रियल लाइफ का इंसिडेंट बताना चाहूंगा। मैं कई लोगों को हर बार ये बताता हूँ क्योंकि आजकल हर दूसरे हाउस होल्ड की ये कहानी है कि बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं। बच्चे क्यों, हम लोग खुद मोबाइल एडिक्टेड हैं, स्क्रीन टाइम हम लोगों का बढ़ गया है। तो Right. लास्ट ईयर मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा बेटा भी मोबाइल एडिक्टेड हो गया था। तो काफी टाइम Mm-hmm. तक देखता था, तो मैंने कहा यार मैं एक रनर रहा हूँ, तो मैंने उसको फिर दौड़ाना शुरू किया नियर बाई पार्क में, 1 किलोमीटर वॉक के साथ। फिर 2 पे आए, 3, 4, 5 किलोमीटर दौड़ने लगा। फिर मैंने उसको 5 किलोमीटर के रनिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराना शुरू किया नोएडा में। अच्छा। तो जो पहला इवेंट था, हाँ, जो पहला इवेंट था शिव नादर रन था, नोएडा में ही मेरे घर के पास है। तो उसके बाद थोड़ा बारिश वाला सीजन था, बहुत सारे लोग आए थे वहां पे। सुबह 4:30 बजे वो जिंदगी में पहली बार उठ के गया था। वाह। स्कूल में 7:30 बजे की बस होती है, मुझे 5 बार उठाना पड़ता है तब उठता है वो। लेकिन उस दिन वो 4:30 बजे उठ गया क्योंकि एक महीने से प्रैक्टिस कर रहा था वो। तो अमेजिंग। रेस के बाद उसने मुझे खुद बोला पापा मुझे बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो मुझे उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा ये मोबाइल वगैरह से उतनी खुशी नहीं मिलती है। खुद से ही वो समझ गया कि नेचर के बीच में जब हम चलते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो खुशी अपने आप मिलती है। तो ये चीज मैं आप राइट। लोग आपके आपके इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे भी मोबाइल एडिक्टेड हैं तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में उनको आप इन्वॉल्व करो, जिससे कि हेल्थ भी अच्छी रहेगी और मोबाइल एडिक्शन भी थोड़ा कम हो जाएगा। ग्रेट। So thank you, Anshul. It was a very interesting, insightful discussion. I'm sure इसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी जो मैंने नहीं पूछी हैं जो आप बता नहीं पाए या फिर हमें डिस्कस करनी चाहिए. So I'm sure I'll हम्म। call, we'll have this conversation again. Maybe we'll pick up a topic and just deep dive into it. But thank you so much today for this discussion, and I'm sure a lot of viewers would have loved it and will get inspired. So thank you हम्म। for being on the show. And for the viewers, please subscribe and share and like the video if you like it. And thank you very much for watching.